हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वंशिका। वेलकम टू टीवी पाठशाला। एंड आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। येस फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन asked in many times in your exams, so it's very important topic. Be careful and try to understand it along with us, okay? सो आज के सेशन में हम लोग फाइनली आज के सेशन को देखने के बाद आप तुरंत विद इन अ मिनट्स you will be able to find the coordination number and oxidation state of any complex compound, okay? And still, if you have not watched the previous videos, then go and watch them first so that it would be more clear for you, okay? And furthermore, if I would tell you, so if you have still not subscribed the channel, please subscribe it as soon as possible so that you would never miss any of the notification, and share this video as much as possible, okay? So without wasting the time, let's start. So finally we are going to start the coordination number in coordination compounds, okay? So what has been written over here, let's first try to understand it. So friends, basically the number of ligands attached with the central metal atom is called coordination number. What has been written over here, coordination number is nothing but it's just a number of ligands, okay? How many ligands are attached with the central metal atom are basically known as coordination number, okay? You just have to remember these things. And let me explain you by taking an example. Suppose this one is your central metal atom and here this is ligand. So how many ligands? Suppose here in this, okay, in this graph as you can see 6 ligands are present over here. So the coordination number of this compound will be 6, okay? So it's basically we have to just count the number of the ligands, how many ligands are present in the around the central metal atom. It's basically its coordination number, okay? And now let's see its formula. So friends, the formula of finding the coordination number is that we have to just take a sum of number of ligands, how many ligands are present around the central metal atom. And one more thing which we have to do is that character of ligand, as we have discussed in our previous lectures how many types of the ligands. तो उसमें हमने देखा था कि बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट, एम्बीडेंटेट इस टाइप के ligands होते हैं. तो character of ligand, that means which dentate of ligand we are using, okay? तो या फिर आपके क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स जो आपको दिया हुआ है उसमें कौन सा कैरेक्टर है, मतलब जो लिगेंड प्रेजेंट है उसका कैरेक्टर क्या है, उसे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फाइनली यू वुड गेट योर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है? चलिए आपको एक एग्जांपल लेके क्लियर हो जाएगा ये एग्जांपल देखकर. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल जिसमें दिया हुआ है कॉपर NH3 का होल फॉर 2+, ओके, टेट्रा अमोनियम कॉपर, ओके? सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इज, अब यहाँ पर देखिए आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे जनरली पूछा जाता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा और वहाँ पर क्या किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दिया जाएगा कि आप फाइंड करिए कोऑर्डिनेशन नंबर कि इस गिवन कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करिए, ठीक है? आपको ये भी बोल सकते हैं कि जस्ट फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर, ठीक है? अभी आप देखिए यहाँ पे हाउ मेनी लिगेंड्स आर अटैच्ड विद द कॉपर, 4, दैट्स व्हाई इस कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4. सो यहाँ पे रीजन भी देखिए लिखा हुआ है, बिकॉज 4 लिगेंड्स आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम डायरेक्टली बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4. ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए इसके फॉर्मूले से भी हमने इसको फाइंड आउट किया है. कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1. 4 हमारे नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं जो अटैच्ड हैं कॉपर के साथ, वो 4 हो गए, और इंटू 1. यहाँ पर 1 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, एग्जाम्पल्स जो पढ़े थे कि
मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड्स के, उसमें आप देखेंगे कि जो अमोनिया है वो किस टाइप का लिगेंड है, मोनोडेंटेट, ठीक है। और दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या लेंगे, मोनोडेंटेट है इसलिए हम यहाँ पे इसके प्लेस पर कैरेक्टर ऑफ लिगेंड के प्लेस पे 1 लेंगे, एंड इफ यू मल्टीप्लाइड देम यू विल गेट 4. So finally the coordination number of copper in this complex will be 4. All right. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको ट्राई करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे इसे। कोबाल्ट EN होल थ्राइस एंड 3+। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, टेट्रा इथिलीन, ओके, सो इथिलीन डायमीन, ओके, इट्स इथिलीन डायमीन। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये समझते हैं। सो हाउ वी आर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, इथिलीन डायमीन ये आपका दिया हुआ है, और इथिलीन डायमीन कौन से टाइप का लिगेंड है पहले तो आप ये पता कर लीजिए। तो इथिलीन डायमीन जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, बाइडेंटेट लिगेंड्स का, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। इथिलीन डायमीन कौन से टाइप का एग्जाम्पल है, बाइडेंटेट लिगेंड का। अभी आप देखिए यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे, तो किस वे में कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे, मतलब कि फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 3, क्योंकि कोबाल्ट हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 3। सो दैट मीन्स we have to write 3 over here into character of ligand. if we talk about character of ligand, so ये bidentate ligand है, इसलिए character of ligand के प्लेस में हम 2 लेंगे। so coordination number will be 6. I hope आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6. ऑल राइट, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें AgCN होल ट्वाइस माइनस दिया हुआ है, होल ऑफ माइनस। सो यहाँ पर देखिए आप कि Ag हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, CN क्या है हमारा लिगेंड। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि जो साइनाइड है वो किस टाइप का लिगेंड है, इट इज़ मोनोडेंटेट और वेदर इट इज़ बाइडेंटेट, ठीक है। तो देखिए मोनोडेंटेट लिगेंड है साइनाइड हमारा, तो यहाँ पे पहले ही हम नोट कर ले रहे हैं कि हमारा कौन सा लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड, सो दैट वी मे नॉट फॉरगेट इट फॉर द मोनोडेंटेट लिगेंड। ऑल राइट, अभी आप देखिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो 2 लिगेंड्स आर प्रेजेंट ओवर हेयर, सो वी जस्ट हैव टू राइट 2 into, as it is monodentate ligand, so multiplied by 1, and finally the coordination number will be 2. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, एंड अभी तक अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सब शेयर इट। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा उसे देखते हैं आप। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेरस ओवर हेयर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है फेरस का, वो फाइंड करना है हमें। तो चलिए देखते हैं लिगेंड्स कितने प्रेजेंट हैं यहाँ पर। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो फॉर्मूला हमें पता है, और उससे पहले हमें क्या देखना होगा कि ये ऑक्सिलेट जो आयन दे रखा है C2O4 2-, ठीक है, ये किस टाइप का लिगेंड होता है, ये हमारा बाइडेंटेट लिगेंड होता है, राइट, बाइडेंटेट लिगेंड। और अगर ये हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम इसका फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए यहाँ पर कितने लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, 3। फेरस के अराउंड हाउ मेनी लिगेंड्स आर प्रेजेंट, 3, मल्टीप्लाइड बाय विच टाइप ऑफ कैरेक्टर ऑफ लिगेंड इज, कैरेक्टर ऑफ लिगेंड इज 2, ओके, सो 3 into 2 विच इज इक्वल्स टू 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फेरस का और आयरन का कितना आ रहा है यहाँ पर, 6। ऑल राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं विच इज हेक्साक्लोरीन प्लैटिनम, ओके। यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले क्लोरीन जो है वो हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड है, हमें पता है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर is equals to what will be its coordination number, 6, because 6 ligands are present over here into 1. all right, because chlorine is monodentate ligand,
That's why the coordination number will be 6. All right. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने की ओर आगे बढ़ने की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट है उसमें. तो देखिए इस पॉइंट को आप नोट करिएगा. कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड एंटिटी एंड काउंटर आयंस. जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है हमारा, उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे बोलते हैं और काउंटर आयंस क्या होते हैं, ठीक है, ये पता करना है हमें. तो सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में स्क्वायर ब्रैकेट आपने देखा होगा, ठीक है. कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं ना. जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए ये जो कंपाउंड है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये जो ब्रैकेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर एंटिटी, ठीक है. कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी. अभी काउंटर आयंस की बात कर लें तो काउंटर आयंस क्या होते हैं, आयंस और एटम्स आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अब देखिए आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कि ये वाले एग्जाम्पल में देख लीजिए, आप दोनों एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर K4 बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, एंड यहाँ पर Cl3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है. तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाले जो आयंस या एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली उनको हम काउंटर आयंस बोलते हैं, ठीक है. अब हम इसको जानने के बाद हमारे लिए एक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसीलिए अब हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन स्टेट के बारे में. ना हाउ कैन वी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है. अब आप देखिए यहाँ पर हाउ टू स्प्लिट. यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से लिए, क्योंकि इन जनरल हमने क्लास 11th में आपने रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत निकाली होगी, ठीक है. बहुत सारे कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली होगी आपने. बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में थोड़ा सा ट्विस्ट ये रहता है कि हमें क्या करना होता है, अगर आपकी काउंटर आयन और स्क्वायर मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें सबसे पहले स्प्लिट करना होता है, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू स्प्लिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनटू द आयंस. हमें क्या करना है, कैसे हम स्प्लिट करेंगे किसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आयंस में. चलिए देख लेते हैं. जैसे कि आपका K4 FeCN6 दिया हुआ है, तो अब देखिए इसे हमें क्या करना है, आयंस में ब्रेक करना है. तो आयंस में ब्रेक करने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी ट्रिक होती है जिसे आप नोट कर लीजिए. और उसमें करना क्या होता है, मतलब इस ट्रिक से आप बहुत ही इजीली इसको स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है. क्या ट्रिक है वो कि अगर काउंटर आयन, ठीक है, ये आपका काउंटर आयन है यहाँ पर K4. अगर काउंटर आयन पर आपका जो भी चार्ज प्रेजेंट है, सपोज पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर काउंटर आयन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट साइन का चार्ज प्रेजेंट होगा. मतलब कि अगर काउंटर आयन पे पॉजिटिव है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव होगा, काउंटर आयन पे नेगेटिव है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, ओके, बट दे आर डिफरेंट इन साइन. अभी आपको थोड़ा और क्लियर होगा. आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये काउंटर आयन है यहाँ पे, ठीक है ना, K4, और ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. अब देखिए आप क्या करोगे, इसको जब हमने ब्रेक किया तो ये जो 4 है, क्योंकि 4 टाइम्स के और पोटेशियम हमें पता है +1 होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. तो देखिए 4K+, इसको हमने लिख लिया. अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 टाइम्स K+ है, राइट. तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, सिर्फ साइन यहाँ पर 4 किस में है, प्लस में. बट जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज को लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपोजिट. हमने क्या कहा था, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अपोजिट हो जाएगा. तो यहाँ पर प्लस है, दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ये -4 हो गया. ऑल राइट. सिमिलरली इन द सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर भी आप देखिए Cl3 जो है 3Cl- इसे हम लिखेंगे, ठीक है, 3Cl-. अब देखिए -3 यहाँ पर चार्ज है, तो डैट मीन्स आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर कैसे चार्ज आएगा, +3, ओके. तो इस तरह से ये हमारा स्प्लिटिंग हो गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की.
अब देखिए कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कैसे करते हैं। तो एक सबसे पहले तो क्या करना होता है आपको कि कोऑर्डिनेशन जहाँ पर भी आपके क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता है कि आपको काउंटर आयंस गिवन हो। अगर काउंटर आयन गिवन नहीं है देन इट्स वेरी सिंपल, आप अपना रेडॉक्स रिएक्शन में जिस तरीके से हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड की थी सिमिलरली हम उस तरह इसमें भी फाइंड करेंगे। बट वेरेवर द काउंटर आयन इज प्रेजेंट, आपको क्या करना होगा वहाँ पर सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्प्लिट करना होगा। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब फिर काउंटर आयन पे कितना चार्ज है वो फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर अपना प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, मतलब प्रीवियस प्रोसेस से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर काउंटर आयन हैज़ चार्ज ऑफ -3। ठीक है, जो काउंटर आयन्स हैं उनके पास चार्ज कितना है, -3 का। ठीक है, ये हम बी ऑप्शन ले रहे हैं, बी ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि काउंटर आयंस में किस टाइप का चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, सो काउंटर आयन हैज़ चार्ज -3 क्योंकि क्लोरीन पर किस टाइप का चार्ज है, -3, तो 3 × -1 दैट मीन्स -3। अभी आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। तो देखिए जहाँ पर भी हमें जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए होती है हम उसे X सपोज कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कोबाल्ट को X सपोज कर लिया है, 6 लिगेंड्स हैं एंड अमोनिया पर आपको पता है चार्ज 0 होता है तो न्यूट्रल है ये, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 0 ले लिया है, इक्वल्स टू +3 क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज +3 है और इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, +3। दैट्स व्हाई वी कैन से that the oxidation state of cobalt will be of what, +3। ठीक है, जो सॉरी यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये कोबाल्ट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, कोबाल्ट की +3 है। और ये जो ऑप्शन ए एग्जाम्पल है इसकी भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट फर्दर निकालेंगे। अभी फिलहाल ये आपका जो बी एग्जाम्पल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली गई है। यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेशन के प्लेस पे X रख लिया है, 6 × 0 यहाँ पर अमोनिया के प्लेस पे है, 3 + 2 में आ गया है और X को हमने इधर रोका है। उसके बाद फिर इफ़ यू देन इट विल बी वेरी क्लियर दैट X will be equals to +3. So oxidation state of cobalt will be +3. All right. Now let's see the next example, which is let's move towards the next example. और we will take a question. Okay, it's your exam question. It has been many times asked in your exams. Okay, so let's practice these questions. तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, असाइन चार्ज ऑन गिवन आयंस। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, चार्ज असाइन करना है। जो आयंस हमें दे रखे हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, चार्ज असाइन करना है। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ पे X आपको दिख रहा है बस इस X के प्लेस पे क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इट विल बी वेरी इजी, जैसे कि हम लोग अभी तक ऑक्सीडेशन स्टेट में करते आए वही इसमें भी करेंगे सिमिलरली। कैसे करिए हम लोग इसको, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि क्योंकि यहाँ पर हमें मेटल की नहीं, जो X जहाँ पर लिखा हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि ऑक्सीडेशन स्टेट Hg की क्या होगी दिए हुए कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी Hg है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, 2+। कितनी होगी, 2+। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मरकरी, ठीक है, Hg इज इक्वल्स टू 2+। ठीक है, और +2। ठीक, उसके बाद अब हम फाइंड करेंगे X इज इक्वल्स टू, यही तो करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर को यहाँ पर लिखते हैं, तो X विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2, क्योंकि 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस अब देखिए ये आपके 4 लिगेंड्स हैं एंड Cn-1 है इज इक्वल्स टू व्हाट, sorry, X is equals to this one. So X is equals to 2 - 4, that means
x will be equals to -2. So the charge on this compound will be 2, -2. All right, the charge on this complex compound will be -2. Now let's move towards our next example, जिसमें यहाँ पर आपको चार्ज असाइन करना है. तो यहाँ पर भी चार्ज असाइन करना बहुत सिंपल है, बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए कोबाल्ट की. एंड इट्स वेरी क्लियर टू अस कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट हेयर, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3. ओके, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू वी विल टेक 3 + 2 × 0. वाई विल टेक 0. यहाँ पर जो भी आपको लेना, मतलब ये x है तो x हमने यहाँ पर रख लिया. कोऑर्डिनेशन स्फीयर को इक्वल्स टू, आफ्टर इक्वल्स टू, एंड देयर आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू, 3 + 2 × 0, क्योंकि 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 हमने यहाँ से ले लिया. एंड इसमें जो लिगेंड प्रेजेंट है NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 है. तो फिर 0 यहाँ पे हमने लिख लिया है. +4 × क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है, -1. सो इट विल बी इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू -1. आफ्टर सॉल्विंग यू वुड फाइंड दैट x विल बी इक्वल्स टू -1. तो यहाँ पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, वो क्या होगा, -1. ठीक है. सिमिलरली लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बहुत इजी है. हमें क्या है, यहाँ पर देखिए आपकी कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी भी गिवन है. ठीक है, काउंटर आयन, ठीक, काउंटर आयन भी दिया है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर काउंटर आयन भी प्रेजेंट है. तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमें किसकी पता होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe. तो फ्रेंड्स देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट फेरस की कितनी होती है, हमें पता है कि कभी कभी ये +2 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट और कभी कभी +3 शो करता है. तो हम दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइंड करेंगे. ओके, तो देखिएगा जब +2 रखेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को तब क्या आएगी, और जब +3 रखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तब क्या आएगी. तो देखिए फॉर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जब हम वो लेंगे तब देखिए x इज इक्वल्स टू आपका आएगा 2 + 6 - 1 which is equals to -4. and if we take for +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 + 6 - 1, ओके, विच इज इक्वल्स टू x विल बी इक्वल्स टू -3. सो अगर आप +2 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फिर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है. अगर हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं फेरस की, तो हमारा जो यहाँ पर असाइन चार्ज है कौन सा है, -4. और अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं तो कौन सा चार्ज असाइन हो रहा है यहाँ पर, -3. ठीक है, एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की. एंड इट विल बी योर होमवर्क. आप इसे ट्राई करिए और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए एंड अपने जो व्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ कुड वी गिव द नेम्स टू दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ओके, तो ये नेमिंग जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ये भी मैनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.